کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی۔ ماریوپول پر قبضے کی خورز لڑائی ختم۔ ماریوپول کے سٹیل پلانٹ میں پھنسے 265 یوکرینی فوجیوں نے ڈالے ہتھیار۔ بیشتر جنگجوؤں کو روس کے زیر کنٹرول علاقے میں کیا گیا منتقل۔ یوکرینی حکام کا بیان، ان میں 53 یوکرینی ہیں شدید زخمی۔ روس نے قیدیوں کے تبادلے سے کیا انکار، کہا پلانٹ سے نکالے گئے یوکرینی جنگجو ہیں جنگی قیدی۔ وولودیمیر زیلنسکی کا بیان، کہا یوکرینی باشندوں کو واپس لانے کا عمل جاری۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی جارحانہ کارروائی جاری۔ یروشلم میں ایک فلسطینی شخص کی آخری رسومات میں شامل افراد پر کیا گیا حملہ۔ اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے آنسو گیس، اسٹن گرینیڈ اور ربر کی گولیاں داغی، 52 فلسطینی زخمی۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کے لیے نیٹو کی رکنیت کی ہے مخالفت کی تصدیق، صدر رجب طیب اردغان کا بیان۔ فن لینڈ اور سویڈن کے وفود ترکی آنے کی نہ کرے زحمت، کہاں ان لوگوں کو ہاں نہیں کہہ سکتے جو ترکی پر لگاتے ہیں پابندیاں۔ لبنان پارلیمان میں حزب اللہ اور اتحادیوں کی برتری ختم، 128 رکنی پارلیمان میں محض 61 سیٹوں پر ملی جیت۔ نیشنلسٹ کرسچن لبنانی فورسز پارٹی بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری، کئی آزاد امیدوار ہوئے ہیں کامیاب۔ بفلو حملے کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے بفلو پہنچے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول، محلوقین کے افراد خانہ سے کریں گی ملاقات۔ ہفتے کے روز سپر مارکیٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں 10 افراد ہو گئے تھے ہلاک، اسی حوالے سے بفلو پہنچے صدر جو بائیڈن۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجہ پکشے کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد ناکام، سری لنکا کے نئے وزیر اعظم نے ملک میں پیٹرول ختم ہونے کی اور دواؤں کی قلت کی بھی کہی ہے بات۔ نئے وزیر اعظم وکرما سنگھے نے پیش کی تجویز، معاشی بحران سے نکالنے کے لیے قومی ایئر لائن فروخت کرنے کی پیش کی تجویز۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ، ہول سیل مہنگائی کی شرح 15% سے تجاوز، 1998 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچی ہے مہنگائی کی یہ شرح۔ دنیا میں سب سے زیادہ غیر مسلمان زیر اعتاب کا شکار، 1 ملین سے زیادہ افراد چین کے کوناشیر کاؤنٹی میں قید۔ دنیا میں سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے تعداد، پوری دنیا نے کر رکھا ہے چینی مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو نظر انداز۔ اسپین یورپ کا پہلا ملک بن سکتا ہے جہاں خواتین کو حیض کے دوران مل سکتی ہیں اسپیشل لیو۔ حکومت کی تجویز پر جلد ہوگی قانون سازی، خواتین میں خوشی کی لہر، تاہم ایک طبقہ تجویز کے حق میں نہیں۔ کچھ اہم قومی خبریں۔ گیان واپی مسجد کو لے کر سپریم کورٹ میں ہوئی سماعت، عدالت نے کہا پہلے کی طرح بلا رکاوٹ ہوتی رہے گی نماز۔ شیولنگ کے دعوے کی جگہ کی حفاظت کی دی ہدایت، معاملے کی اگلی سماعت اب 19 مئی کو۔ گیان واپی مسجد کے سروے رپورٹ جمع کرنے کے لیے 2 دنوں کی ملی مہلت، عدالت نے کورٹ کمشنر اجے مشرا کو کیا برخاست۔ ہندوستان کا مسلمان ایک اور مسجد نہیں کھوئے گا، گیان واپی مسجد پر ایم آئی ایم صدر اسدالدین اویسی کا شدید رد عمل۔ وضو خانے کے فوارے کو شیولنگ کا دعویٰ کرنے پر اسدالدین اویسی نے کیا تشویش کا اظہار۔ گیان واپی مسجد معاملے میں اکھلیش یادو کا بیان، کہا سماجوادی پارٹی ہے ملک کی سالمیت اور گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہندوستانی وراثت کی حفاظت وقت کی اہم ضرورت۔ گیان واپی مسجد کی تائید میں کرنول کلکٹریٹ پر ایس ڈی پی آئی کا احتجاج، شرپسندوں کی جانب سے وضو خانے کے فوارے کو شیولنگ قرار دینے پر کیا ناراضگی کا اظہار، امن و امان کو بگاڑنے والی تنظیموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔
मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर अदालत में अर्जी दायर, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बाक़ियात के साथ छेड़छाड़ का खदशा जाहिर, शाही ईदगाह को सील करने का मुतालबा। आसाम में सैलाब से भारी तबाही, कम से कम 7 अफराद हलाक, 33,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम इजरा तकरीब का इनेकाद, अकेडमी के माली ताउन से शाये होने वाली किताबों का रस्मी इजरा। तकरीब में उर्दू अदब की नामवर शख्सियात ने की शिरकत, किताब के हवाले से इजहार ख्याल। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर 10 रोजा बैरून मुमालिक दौरे पर, स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में करेंगे शिरकत। जस्टिस सोजोल भुयान तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर, मौजूदा चीफ जस्टिस का दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर, मुल्क की 5 रियासतों के लिए नए चीफ जस्टिस का हुआ है तकर्रुर। उर्दू मीडियम तलबा के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मुकाबला जाती इम्तिहानात का मवाद उर्दू में किया जाएगा फराहम। वज़ीर दाखिला ने आला ओहदेदारों को दिया है मशवरा, इंग्लिश और तेलुगु जबान में मवाद की फराहमी से तलबा को पेश आ रही थी दिक्कतें। दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट की तामीर का वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के हाथों संग बुनियाद, 15,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है ये पावर प्रोजेक्ट। खातून की इस्मत रेज़ी और उन पर हो रहे हमलों के खिलाफ तेलुगुदेशम खवातीन विंग का जबरदस्त एहतजाज, विजयवाड़ा में एहतजाजी खवातीन ने निकाला कैंडल मार्च भी, जगन हुकूमत पर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी का लगाया गया इल्जाम। नंदियाल में ईद मिलाद तकरीब के मौके पर खास मुशायरे का इनेकाद, कारवान उर्दू की जानिब से मुशायरे का इनेकाद, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए माह मुशायरा मुनक़्क़िद करने का ऐलान। ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े से सबक लेने की कोशिश, जमात इस्लामी हिंद ने औक़ाफ़ और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की खास पहल, ट्रस्टीज़ की काउंसलिंग के लिए मुनक़्क़िद किया वर्कशॉप। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पे अमले की तकर्रुरी को हुकूमत की हरी झंडी, जल्दी शुरू होगा रियासती वक्फ बोर्ड में नई तकर्रुरियों का अमल, एग्जेक्टिव अरकान की मीटिंग में फैसला। बुल्डाना में मुल्क में अजान के खिलाफ फैलाई जाने वाली अफवाहों पर हुई बातचीत, गलतफहमियों को दूर करने की गई कोशिश, शहर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुसलमानों को इस वक्त सूझबूझ और हिकमत अमली से लेना होगा काम, इस्लाम का अहम जुज़ इखलाक और इत्तेहाद ही कामयाबी का ज़ामिन, मुमरा में हालात हाज़िरा पर खास नशिस्त का इनेकाद। वहीं नांदेड़ में 2 किताबों का रस्मी इजरा, तकरीब में अवार्ड याफ्ता शख्सियात को पेश की गई खास अहमियत, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर मजीद बेदार समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मैसूर के जामा मस्जिद पर हिंदू तंजीमों की है नजर, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई, हिंदू तंजीम का दावा, तंजीम के वक्त की मंडिया के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी इस सिलसिले में। कर्नाटक की तारीखी मस्जिद मस्जिद आला का तनाज़ा, तहरीके खुदादाद के सदर मंसूर अली की न्यूज़ 18 से खास बातचीत, कहा कुछ शरपसंद तंजीमें तनाज़ा पैदा करके कर रही हैं कोशिश। कर्नाटक के क्वाडगो में बजरंग दल का ट्रेनिंग कैंप, कारकुनों को फायरिंग की दी गई ट्रेनिंग कैंप में त्रिशूल भी किए गए तकसीम, कैंप का वीडियो हुआ वायरल। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की सिग्नेचर कैंपेन न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ मुहिम, 1 मई से शुरू की गई मुहिम 28 सितंबर तक। यूपी में शदीद गर्मी की वजह से फुटपाथ दुकानदार हुए बेरोजगार, बाजारों में पसरा है सन्नाटा। वहीं दूसरी तरफ मकामी इंतजामिया वेंडर्स को साइबान लगाने की नहीं दे रही इजाजत, फुटपाथ वेंडरों के सामने अपनी 2 जून की रोटी कमाने का भी हो गया है बुहरान।
IAS पूजा सिंघल पर कसता जा रहा है शिकंजा। मोबाइल लैपटॉप में मिले बदनवानी के पुख्ता सबूत। ईडी की पूछताछ के दौरान बेहोश। और रोहतास के बिक्रमगंज में सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के घर में दिन दहाड़े लूट। 3 अफराद ने लूट को दिया अंजाम। जज की अहलिया से की गई मारपीट। हज कमेटी की तश्कील के बाद दूसरे अक़लियती इदारों को तश्कील करने की मांग। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान उज़्मा बारी ने किया, अक़लियती इदारों की तहलील रहने से काम है बंद। हुकूमत इस मामले में करे फौरी तौर पर पहल। और आसाम से इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं, जहां सैलाब से भारी तबाही की इत्तला है। 20 अजला में 4 लाख अफराद मुतासिर हैं। रेल और सड़क राब्ता पूरी तरह से मुनक़ते हो गया है। और आसाम में सैलाब के हालात को देखते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासत के CM से खुद बात की है और मरकज़ की तरफ से तमाम तरह की मदद का यकीन भी दिलाया है। तो आसाम में जिस तरह से सैलाब की बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर रेल और सड़क राब्ता मुनक़ते हुआ है। और रेल को लेकर ख़ास तौर पर एक मुहिम भी हमने देखी थी कि किस तरह से वहाँ पर फ़ौज ने एक ट्रेन में फंसे लोगों को बचाया था। 20 अजला में 4 लाख अफराद मुतासिर बताए जा रहे हैं। खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह की इस पर नज़र बनी हुई है। रियासत के CM को उन्होंने हर तरह की मदद का यकीन दिलाया है। मरकज़ की तरफ से तमाम तरह की मदद की यकीन दहानी कराई गई है। तो लगातार कई दिन से हम देख रहे हैं कि आसाम में भारी बारिश के बाद से हालात सैलाब के बने हुए हैं, अबतर हो गए हैं। लोगों को महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल किया गया। खबरों में इतना ही। आदाब।